ओके स्टूडेंट्स, सो 15th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन हमारे सामने कि कहता है कि इफ log of under root of x square plus y square is equals to tan inverse of y by x, find dy by dx. राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहता है? कहता है कि इफ log of under root of x square plus y square is equals to tan inverse of y by x, find dy by dx. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फर्स्टली. तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन क्या कहता है? log of under root of x square plus y square equals to tan inverse of y by x. Is it very clear to you? है ना, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज अच्छा मेरे को बताओ व्हाट इज रूट एक्स. रूट एक्स को हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, x raised to half. कैन वी राइट दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट द सेम रूट. ठीक है, ये जो रूट है हमारे पास, इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे. देखो, log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू हाफ. जो स्क्वायर रूट था उसको रेज टू मैंने हाफ लिख दिया, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x. इज इट क्लियर? log of x square plus y square raised to half equals to tan inverse of y by x. Clear? Okay. So before going ahead, ठीक है, आगे जाने से पहले मैं एक रूल बता देता हूँ log का, जो हमने कई बार यूज किया. सिंस log of a raised to b is equals to b into log a, so by using the same rule, ठीक है, इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे? देखो, ये जो हाफ है, this half will come ahead, right? So therefore half into log of x square plus y square is equals to tan inverse of y by x. Tan inverse of y by x. Now is it clear to you? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको. अच्छा, now what we will do? We will differentiate. अब हम लोग क्या करेंगे? We will differentiate now. Okay, differentiate this implicit function. Why it is an implicit function? क्यों है ये implicit function? Because यहाँ पे y या x का टर्म अलग अलग नहीं है, मतलब मिक्स है, जम्बल लग है. तो आपको at a time अंदर ही मिलेगा dy by dx, अलग से कोने में dy by dx नहीं मिलेगा, not in a corner. Okay, so let us differentiate this implicit function. So differentiating with respect to x we get. ठीक है, let's see how we differentiate it. ठीक है, सबसे पहले so I will apply dy by dx on both the sides. Half into log of x square plus y square is equals to, so bracket close, dy by dx of tan inverse of y by x. Right, tan inverse of y by x. Clear है? समझ में आ गया? कुछ भी डाउट यहाँ तक तो आई होप नहीं होगा. सो लेट्स सी, हाफ इज अ कांस्टेंट, राइट? 1/2 इज अ कांस्टेंट, इट गोज अहेड ऑफ डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, सो देयरफॉर हाफ इनटू d by dx of log of x square plus y square is equals to tan inverse of y by x. What is the derivative for tan inverse of x? Tan inverse of x का derivative है 1/1 plus x square, right? But in place of x we have y by x, so it will come as y by x, right? So y by x का whole square into, because y by x is a composite function, so I will derivate it again. फिर से derivate करूँगा मैं. So d by dx of y by x. Is it clear? क्या किया मैंने, समझ में आ गया? ठीक है, have you understood this? है ना? ओके, बढ़े आगे. ओके, लेट्स गो अहेड. सॉरी. सो log x का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर log x? दिस इज, कंसीडर दिस एज log x. ठीक है, आफ्टर यू कंसीडर दिस एज log x, टेल मी व्हाट विल बी द डेरिवेटिव फॉर log x. सो डेफिनेटली इट इज 1/x, and in place of x we have x square plus y square, right? X square plus y square into
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बताओ मेरे को, 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अच्छा y by x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, how we will find out the derivative of y by x, by applying u upon v rule या फिर u by v rule, ठीक है। I will those who don't know what is u by v rule, I will write over here. So d by dx of u by v is equals to v into d by dx of u minus u into d by dx of v upon v square, ठीक है। ये मेरा रूल है u by v rule, what I will be applying over here. So सबसे पहले आएगा v यानी कि कौन, x, उसके बाद u का डेरिवेटिव यानी कि dy by dx, राइट, डेरिवेटिव ऑफ y, फिर y अलोन into dy dx of x upon v square in the sense x square. Now is it clear कि क्या किया है यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square, okay। बढ़ते हैं आगे, see half will be as it is, so instead of writing it as half I will just write it singularly 1 upon 2 into x square plus y square. अच्छा now tell me what is derivative of x square, what is the derivative of x square, right, because आगे चल के the next step will be derivative of x square. What is the derivative of x square? Yes, correct, 2x. Those who know, for them 2x, and those who don't know 2x comes. लेकिन कैसे आता है, x raised to n का फॉर्मूला लगा के, n into x raised to n minus 1. So this is n into x raised to n into 2 minus 1, which is 1. Again y square का derivative will be 2y, but because y is a composite function, ठीक है, it is a different function altogether. तो हम लोग यहाँ पे फिर से y का भी डेरिवेटिव लेंगे, that is dy by dx, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट, समझ में आ गया। अच्छा अब बात कर लेते हैं इस x स्क्वायर की, जो जाके यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, ठीक है ना, बेस्ट विशेस। सो 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ बिकॉज़ इट मल्टीप्लाइड विद 1, तो x स्क्वायर इनटू 1 इज नथिंग बट x स्क्वायर इटसेल्फ, है ना। अच्छा ब्रैकेट वाला पार्ट देख लेते हैं, x विल बी एज इट इज इनटू dy by dx, ठीक है, into dy by dx minus y, what is dy by dx of x, what is derivative for x, 1, so मैं लिख रहा नहीं हूँ 1 को, so इतना पार्ट लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्या। बढ़े आगे के, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो दोनों में 2 जो है कॉमन है, we have 2 over common over here, so bring this 2 outside, so 2 upon 2 into x square plus y square, bracket में what you get is x plus y into dy by dx, ठीक है, x square plus x plus y into dy by dx, and what will happen to this x square, ठीक है, ये x square का क्या होगा, है ना, क्वेश्चन आ रहा है कि what will happen to this x square, तो ये x square जो है यहाँ पे it will shift to the top position, right, उल्टा हो जाएगा, है ना, तो वो चले जाएगा ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया, वो चले जाएगा ऊपर, ठीक है, because it is 1 divided by 1 के नीचे ये दोनों, ठीक है, तो जाके डिवाइड, तो रेसिप्रोकेट, तो x square upon x square plus y square। अच्छा what about this x square, वो भी रहेगा वहीं पे, ठीक है। So what I am getting is x into dy by dx minus y the whole upon x square. Is it clear till this part? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, बढ़े आगे, ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके सी, ये जो 2 है और ये जो 2 है वो तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, ये दोनों
ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, और एक चीज है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे इसलिए। तो व्हाट आई एम रिमेन्ड विद इज एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, if you look, so dy by dx is common over here also and over here also. So bring this dy by dx वाला part on this side और x को उधर भेज दो, right? क्लियर है मैंने क्या बोला, समझ में आ गया है ना? So देखो, therefore y into dy by dx minus x into dy by dx is equals to minus y and plus x goes on that side becomes minus x. ठीक है, plus x goes on that side becomes minus x. Is it clear? Okay, so now as you know dy by dx is common over here also and over here also. So because it is common, dy by dx क्योंकि common है, so dy by dx will remain outside. ब्रैकेट के अंदर बचेगा y minus x is equals to minus y माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब भेज देते हैं इस y माइनस एक्स को डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सो देयरफॉर dy by dx is equals to minus y minus x upon y minus x. Is it clear? क्या ये चीज यहां तक समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो। अगर आपको चाहिए तो एक और स्टेप आप लिख सकते हो। देखो दोनों के पास माइनस है तो इसके माइनस को बाहर निकालो तो दोनों अंदर प्लस हो जाएंगे, राइट? सो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई। मेरी बात समझ में आई? दोनों के पास माइनस है, माइनस बाहर निकाल लो तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई। यहाँ पे सिर्फ एक के पास माइनस है, वो है x के पास, तो यहाँ पे भी अपन ने कॉमन निकाल लिया, x का कॉमन बाहर आ गया, x का माइनस बाहर आ गया। y के पास नहीं था तो उसको दे दो, ठीक है ना? फिर से एक बार, माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और यही है आपका फाइनल वैल्यू जो कि है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर? है ना, समझ में आ गया क्या आपको? सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx। आई विल राइट ओवर हियर dy by dx इज इक्वल्स टू एक तो x प्लस वाई और एक तो x माइनस वाई। ठीक है, so this is the final value. Okay, understood? समझ में आ गया क्या? है ना, थोड़ा लेंदी है सम, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हो, इतना मेरे को ट्रस्ट है। ठीक है, हर एक स्टेप अगर फॉलो करते जाओगे तो डेफिनेटली आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, आंसर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन हर एक स्टेप फॉलो करना बड़ी बात होती है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, है ना? कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ इन डाउट लेट मी नो।